Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Today's lecture is for class 12. Boys, today's topic is from your prose textbook, lesson number 2, A Fellow Traveler by A.G. Gardner. So boys, the writer shares his own experience when he travels in a train and shares the compartment with a strange creature called mosquito. Okay, so the author feels very nice and turns to enjoy the rarity of the loneliness, but the mosquito starts teasing him. They both start reacting and rather playing with each other. The author and the mosquito pass the full long journey in a mutual actions and reactions. Thus, it is quite a humorous essay for us. अर्थात लेखक एजी गार्डनर शाम की एक रेल में बिल्कुल अकेला है, ट्रेन में बिल्कुल अकेला यात्रा कर रहा है। रेलगाड़ी लंदन को छोड़ती हुई निकल रही है, गर्मियों की शाम है। एक मच्छर रेल की डिब्बे में घुस जाता है। यहाँ तक लेखक को सब कुछ अच्छा लग रहा था तथा इस दुर्लभ एकांत का आनंद लेने के लिए वह मुड़ता है, किंतु वह मच्छर उसे तंग करना शुरू कर देता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। ये लेखक और वह मच्छर पूरी यात्रा एक दूसरे के साथ आपस की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं में बिता देते हैं। इस प्रकार यह हम सब लोगों के लिए एक मनोरंजक लेख है। वाइज सो लेट अस शेयर द राइटर्स एक्सपीरियंस, how he travels and shares the compartment of a train with a mosquito, his fellow traveler. So the title of the lesson is A Fellow Traveler by A.G. Gardner. The fellow traveler is a mosquito who is traveling along with the writer in a train. Okay, so let us come to the text. So, about the author, A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent writer, was born in 1865. As a journalist, he worked and edited the Daily News for 17 years in London. He wrote several volumes of essay under the pen name of Alpha of the Plough. His prominent works are Priest and Kings, Pebbles on the Sow, and Leaves in Wind. He died in 1946, but he will be remembered forever through his unique writings. So about the lesson, A Fellow Traveler has been selected from Leaves in Wind. It is a fine specimen of personal essay. The author here describes how he develops a feeling of affection for a mosquito, regarding him as a fellow traveler and a fellow mortal. Now, okay, so this is the text. I do not know which of us got into the carriage first. हम में से नहीं मालूम कि कौन पहले इस डिब्बे में अंदर आया, अंदर घुसा, अंदर चढ़ा, किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में कुछ देर तक मुझे यह बिल्कुल ज्ञात नहीं था, मालूम नहीं था कि वह डिब्बे में है। It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. लंदन से मिडलैंड नगर के लिए यह अंतिम रेलगाड़ी थी। हर एक स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी थी, अत्यधिक धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, उन गाड़ियों में से एक जो आपको अनंत का बोध कराती है। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had reached, we had left the outer ring of the London behind. I was alone, or rather, I thought I was alone. जब यह रवाना हुई तो काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से लगे हुए देहात के स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक और दो दो करके उतरते गए, और जब तक हम लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ते मैं अकेला था, या यह समझिए मैंने सोचा कि मैं अकेला था। दिस इज द फर्स्ट
paragraph. Now let us move to the next. So in this paragraph, in the coming paragraph, in this paragraph, the writer tells us about what we can do when we are alone in the compartment, in the whole bogie of a train. What we can do, you know, whatever we like, we can do, because there is no one to see, to watch, or to inquire, or to you see, interfere. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. Pleasant sense, pleasant means सुहावना, अच्छा, सुखद। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी में जो रात को शोर मचाते हुए, झटके लेते हुए चल रही है, उसके डिब्बे में अकेले रह जाने में स्वतंत्रता की एक आनंदमय भावना रहती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। मनोरम रूप में यह मुक्ति और बेरोक टोक स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम चाहे तो अपने आप से जितनी जोर आवाज में बात करना चाहे तो बात कर सकते हो, जितना तुम्हें अच्छा लगे, जितना तुम्हें खुशी मिले उतनी ऊंची आवाज में बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। आप जॉन, जो कि काल्पनिक व्यक्ति है, से तर्क कर सकते हैं और विजय के साथ बदले में हमले के डर के बगैर उसे धूल में लुढ़का सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने चाहे तो अपने सिर पर खड़ा हो सकते हैं और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, नाच सकते हैं, एक दो कदम आप चहलकदमी करके डांस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ खेलने के आप अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्वल्स ऑन द फ्लोर, अथवा जो फर्श है, रेल का जो फर्श है, ट्रेन का जो डिब्बे का जो फर्श है, उस पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंडरेंस, बिना किसी व्यवधान और बाधा के। नेक्स्ट, यू कैन ओपन द विंडो और शट विदाउट इट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। आप क्या कर सकते हैं? आप खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं बगैर किसी विरोध या उकसावे या भड़काए। किसी को आप ऐसा कर सकते हैं, खिड़की खोलना बंद। आप आगे, यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। आप चाहे तो दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। आप चाहे तो वास्तविकता में क्या कर सकते हैं? उनको खोलना, आप स्वतंत्रता के एक प्रकार के जश्न या आनंद के रूप में उनको बराबर खोलते और बंद करते रह सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। आप चाहे जिस कोने में बैठ सकते हैं, आप किसी कोने को जिसको चाहते हो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और बारी बारी से उन सबको अपनाकर आप देख सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन्स ऑफ द enjoy the luxury of breaking the regulations, possibly the heart of Dora। आप चाहे तो गद्दियों पर पूरी लंबाई से लेट सकते हैं और नियम तोड़ने का आनंद ले सकते हैं, और संभवतः डोरा, जो राज्य की सुरक्षा अधिनियम है, को भी आप तोड़ सकते हैं। एंड ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। और डोरा को भी ज्ञात नहीं होगा कि उसका हृदय तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात्रि में, जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इस रात में मैंने ऐसा इनमें से कोई चीज नहीं की। दैट दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी। वे मेरे मस्तिष्क में नहीं आई, ये बातें मेरे दिमाग में नहीं आई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। जो कुछ मैंने किया वह कहीं बहुत मामूली बात थी। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in northern sky. Crossed the carriage and looked out of the window, lit a cigarette, sat down and began to read again. मैंने अपना अखबार रख दिया, अपने हाथ और पैर फैलाकर अंगड़ाई ली, उठ खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर ग्रीष्म की रात को
जिससे होकर ट्रेन दिन की धुंधली रोशनी जो उत्तरी आसमान पर अभी भी ठहरी थी ध्यान से देखता हुआ यात्रा कर रहा था। डिब्बे को पार किया और दूसरी खिड़की से देखा, सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। ये तभी मुझे मालूम चला, अपने सहयात्री के बारे में मुझे आभास हुआ। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज ऑफ दोज बिंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। वह है उन परदार पंखदार फुर्तीले तेज डंक वाला निर्भीक कीड़ों में से एक था जिसको हम आमतौर से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। मैंने उसे उंगली के झटके से अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। उसने गाड़ी के डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट 3 डायमेंशंस। उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी जो तीनों बेमाएं होती हैं उनकी छानबीन की। विजिटेड ईच विंडो। प्रत्येक खिड़की का दौरा किया। फिल्टर्ड राउंड द लाइट। रोशनी के चारों ओर पंखों को फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माय नेक। और निर्णय लिया कि दोनों में उस बड़े जानवर के समान इतना कोई रोचक नहीं है। वह आया और मेरी गर्दन पर दृष्टि डाली। नाउ नेक्स्ट। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। मैंने फिर हाथ के झटके से उसे उड़ाया। ही स्किप्ड अवे। वह उड़कर चला गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। डिब्बे के चारों ओर दूसरी बार छोटा सा भ्रमण किया, लौटा और बड़ी अशिष्टता और बेशर्मी से मेरे हाथ पर पीछे बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड, मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट्स। बहुत हो गया, मैंने कहा, उदारता की भी अपनी एक सीमा है। ट्वाइस यू हैव बीन बाउंड एंड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी गई है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं। मेरा आदरणीय शानदार व्यक्तित्व अजनबियों द्वारा धृष्टतापूर्वक छेड़खानी पर रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप एंड कंडेम यू टू डेथ। मैं मृत्युदंड सुनाने वाले न्यायाधीश की काली टोपी धारण करता हूं। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड कोर्ट अबार्ड इट। यह न्याय की पुकार है और न्यायालय से प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। तुम्हारे विरुद्ध बहुत आरोप है। ओके, यू आर ए बेगरेंट। तुम आवारा हो। यू आर बेगरेंट। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस। तुम सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचाने वाले अनियमित कार्य करने वाले हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट। तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन। तुम्हारे पास मांस खाने का राशन कार्ड भी नहीं है, कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स। इन और बहुत से दूसरे दुर्व्यवहारों के कारण तुम मरने वाले। यू आर अबाउट टू डाई। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड। मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड मी। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंस ईज एंड दैट ह्यूमिलेटेड मी। वह धृष्टतापूर्वक आसानी से पैंतरा बदलकर आक्रमण से ऐसे बच निकला कि मुझे लज्जित और अपमानित होना पड़ा। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज। मेरा जो व्यक्तिगत गर्व है वो भड़क गया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर। मैं अपने हाथ से अपने अखबार के साथ उस पर झपटा। लंज्ड माने झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट। मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड
tactics of feline cunning. Waiting till he alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. मैंने उसके उतरने की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उसके पास पहुंचते हुए अचानक और भयंकर तेजी से चोट करते हुए बिल्ली वाली मक्कारी की तरकीबें अपनाई. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. बट इट वॉज ऑल इन वेन. दिखावे के साथ यह सब व्यर्थ गया, सब कुछ बेकार गया. जितना भी अटेम्प्ट उसने किया मारने का वो बेकार गया. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली. उसने मेरे साथ खेला खुलकर, लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल. उसने मेरे साथ खेला खुलकर और उस चतुर सांड से कुश्ती लड़ने वाले मनुष्य के समान जो एक क्रोधित सांड के चारों ओर स्थिति का चतुराई से सामना करने के लिए पैतरे बदलता है. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोर्ट्स. यह स्पष्ट था कि उसे स्वयं आनंद आ रहा था, इसलिए उसने मेरे चैन आराम में खलल डाला था. ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट्स. उसे कुछ खेल चाहिए था. एंड वॉट स्पोर्ट्स लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. और एक बड़ी भारी भरकम पंचक्की जैसे प्राणी से जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय या मूर्ख मालूम होता था, पीछा किए जाने के समान और क्या खेल हो सकता था. उसके लिए ये सबसे अच्छा खेल था. आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. मैं अपने फेलो ट्रेवलर सह यात्री की भावनाओं को समझने लगा था. He was no longer a mere insect. अब मेरे लिए वो केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था. He was developing into a personality and intelligence that challenged the position of this compartment with me on equal terms. वह एक व्यक्तित्व और बुद्धि वाले प्राणी के रूप में विकसित या उभरने लगा जिसने बराबरी के दावे पर डिब्बे के अधिकार को चुनौती दी थी मुझे. I felt my heart warming towards him and the sense of superiority feeding. मैंने अपने हृदय में उसके प्रति प्रशंसा का भाव अनुभव किया और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटने लगा था मेरा. How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? मैं एक प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकता था जो द्वंद्व में जिसमें हम पहली बार भिड़े थे स्पष्टता मेरा स्वामी बन गया था. अर्थात उसने मुझे अपने अधिकार में कर लिया था. Why not be magnanimous again? मैं क्यों ना दोबारा फिर से विशाल हृदय बन जाऊं. Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. हृदय की उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. मैं इन ऊंचे गुणों को दिखलाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर सकता हूँ. At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. इस समय मैं एक हास्यास्पद मूर्ति बन गया था, उपहास और तिरस्कार का पात्र. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. दयावान होकर मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता था और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता था. I withdraw the sentence of death. मैं तुम्हारे मृत्युदंड को स्थगित करता हूँ. Withdraw the sentence. I said, मैंने कहा, returning to my seat. अपनी सीट पर जाते हुए मैंने ऐसा उससे कहा, मृत्युदंड वापस करता हूं. I cannot kill you. मैं तुम्हें नहीं मार सकता, but I can reprieve you. I do it. लेकिन मैं तुम्हारे मृत्युदंड को स्थगित करता हूं और मैं ऐसा करता हूं. नेक्स्ट. I took up my paper. He came and sat on it. मैंने अपना अखबार उठाया
लेकिन वह आया और बैठ गया। पुलिस फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स। मूर्ख साथी, मैंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ opinion a smack on the both covers, and you are caught neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of the Mr. Huggins. मैंने कहा, मुझे इन विचारों की सम्मानित पत्रिका को दोनों ओर से झट केवल बंद करना था, और तुम पीस ट्रैप नाम का जो शीर्षक है और ह्यूज की शालीनता नामक लेखों के बीच में दबकर लाश बन सकते हो, परंतु मैं यह नहीं करूंगा। बट आई शैल नॉट डू इट, नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। और तुम्हें संतुष्ट करूंगा जब यह बड़ा जानवर जो कहता है उसका वही मतलब होता है, वही अर्थ होता है। मोरोवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और फिर अब मेरी तुम्हारी हत्या करने की इच्छा भी नहीं है। दो नोइंग यू बेटर, अब मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर जानने लगा हूँ। थ्रू यू बेटर, नोइंग यू बेटर, अब मैं तुम्हें ज़्यादा जानने लगा हूँ। ओके, आई हैव कम टू फील, शैल आई से, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। आई हैव कम टू फील, मैं ऐसा महसूस करने लगा हूँ, क्या मैं कहूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मुझे प्रेम हो गया है, स्नेह हो गया है, स्नेह महसूस करने लगा हूँ। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल बिट, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होता। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कह रहा है कि मैं उतनी दूर तक तो नहीं जा सकता जितना कि ईसाई दया और शिष्टाचार में है ये बातें। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक बहुत दूर का संबंध समझता हूं जो हमारे बीच में है। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हम लोगों को इस ग्रीष्म रात्रि का सह यात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, मैंने तुम्हें रोचकता प्रदान की है और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स। एहसान पारस्परिक है, एक दूसरे पर एहसान किया गया है, और यह एक मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम सह प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, जीवन का चमत्कार और उसका रहस्य भी हमारा, अर्थात हम दोनों का एक सा है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे भी यह विश्वास नहीं है, मुझे भी यह विश्वास नहीं है कि मुझे भी अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी है। इसी प्रकार तुम्हें भी नहीं है। Be really, when you come to think of it, a good deal alike. जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो तो हम सचमुच, हम लोग काफ़ी हद तक एक समान हैं। Just appearances that are and then are not, कि that are not coming out of the night into the lighted carriage fluttering about the lamp. So वाइज यहाँ पे आप लोगों को समझना है गौर से। जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो कि हम सोचने लगते हो तो हम सचमुच बहुत हद तक समान है। मात्र प्रेत छाया है जो है और फिर नहीं है। रात के प्रकाशित डिब्बे में आते हैं, थोड़ी देर तक लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं और फिर बाहर निकलकर रात में समा जाते हैं शायद। नेक्स्ट,
Going on tonight, sir, said a voice at the window. It was a friendly porter giving me a hint that this was my station. क्या आज रात को आगे जा रहे हो? खिड़की पर एक आवाज ने कहा। यह एक मित्र कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन है। I thanked him and said I must have been dozing. मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अवश्य ऊँग रहा हूँगा। And seizing my head and stick, I bent out into the cool summer night. और अपना टोप और छड़ी पकड़ते हुए मैं गर्मी की ठंडी रात में बाहर निकल पड़ा। As I closed the door of the compartment, जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाजा बंद किया, I saw my fellow traveler fluttering around again. Pardon? मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। ओके बॉयज, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द लेसन। बॉयज आप लोग पढ़िएगा, इसको पॉज कर करके देखिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा। इससे जो आखिरी जो 2 पैराग्राफ हैं उनमें से एक्सप्लेनेशन अक्सर कर आते हैं, आप लोग तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए हम अगला वीडियो आपको बनाएंगे, इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें आप लोग लिख कर तैयार कीजिएगा, टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके बॉयज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड लक।